हम देखेंगे इंडिया 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन्वेस्टमेंट 1 इज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव 800 rupees in year 1, therefore establish a market for a comparable asset and information about the asset those is available. Investment 2 is right to receive in hand and market price of itna. It has market price of itna. All the three are comparable with respect to you are required to the fair value of asset based on the above information in 1 year. There is a established market for the comparable assets and information is available. तो अगर ये दोनों ही कंपेरेबल है, दोनों का हम डिस्काउंट रेट निकाल लेंगे। किस डिस्काउंट रेट से इनकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू आ रखी है उसको हम सॉरी तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट वन है जिसके लिए हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव इन 1 ईयर है, और इन्वेस्टमेंट 2 में भी 1 ईयर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट 3 में 2 ईयर है। तो ज़्यादा कंपेरेबल इन्वेस्टमेंट 2 है, तो इन्वेस्टमेंट 2 का ही फेयर वैल्यू जो जिस रेट पे डिस्काउंट किया इन्होंने उसी रेट पे इन्वेस्टमेंट 1 को भी डिस्काउंट करेंगे। Alternatively, in the absence of market value of investment 2, 1 year could be derived from investment 3 using the build-up approach. If it is determined that the risk premium of 1 year and 2 year are not the same, the 2 year market would be further adjusted for that effect. तो इसमें एक तरीका ये भी हो सकता था कि दोनों का ही 1 ईयर डिस्काउंट रेट निकाल के दोनों को एवरेज कर दूं, वो भी हो सकता था, लेकिन वो इन्होंने नहीं चूज़ किया। इन्होंने देखा तो मोस्ट लाइकली यही है, तो इसी का डिस्काउंट रेट कर लिया। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। एसेट इज सोल्ड इन 2 डिफरेंट एक्टिव मार्केट एट डिफरेंट प्राइसेस। द एंटिटी एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन बोथ द मार्केट रेट में इतना है ट्रांजैक्शन। तो अब इसमें फिर अब सबसे अगर 2 डिफरेंट एक्टिव मार्केट में है तो हम देखते हैं कि हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस मार्केट कौन सा है। वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल मार्केट कौन सा है। अगर प्रिंसिपल मार्केट ये है तो फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्राइस माइनस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस करते हैं तो 24 वैल्यू आएगी। लेकिन अगर कोई भी प्रिंसिपल मार्केट नहीं है तो हम दोनों की फेयर वैल्यू कंपेयर करके मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट लेंगे। तो दोनों की फेयर वैल्यू कंपेयर करने के लिए हम 26 में से दोनों कॉस्ट माइनस करेंगे, 3B और 2B, तो 21 इस केस में आएगी और 22 उस केस में आएगी। तो मोस्ट एडवांटेजेस ये होगा। तो 24 माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दैट इज 2, तो सेकंड केस में 23 रुपीज़ की वैल्यूशन आएगी।
उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. Zell Limited acquire land in the business combination. The land is currently developed in the industrial area as a factory use. Although the land's current use is presumed to be higher and best unless the market or other factors suggest a different use. Companies A consider the fact that nearby sites have recently been developed for residential use at high risk of apartment building on the basis of that development and recent zoning and other changes to facilitate the development. Companies A determine that land currently used as factory site could be developed as the result of the market participant would take into account the potential of development the site for residential use. The market participant would take into account the potential to develop the site for residential use when the pricing of land. The basis of higher of this value. In the situation involving real estate appraisal, the determination of highest and the best use of might be a factor like operational factor and theoretical क्वेश्चन है ये. हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज हम कंपेयर करते हैं. द वैल्यू ऑफ लैंड currently developed for industrial use, the value of land as vacant sites for industrial use, taking into account the cost of demolishing the factory and the other cost necessary to convert the land into vacant site. Situation number 4 देखते हैं. ABC Limited acquire 5% equity share of XYZ Limited. तो किस कॉस्ट पे नहीं किया? तो दो मेथड होते हैं. या तो इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे दिखा दो या तो फेयर वैल्यू पे दिखा दो. तो उन्होंने सिमिलर नेचर, तो एक होता है आइडेंटिकल, एक होता है सिमिलर. तो सिमिलर लेवल 2 में आता है. उसमें अगर एडजस्टमेंट कर देते हैं हम तो लेवल 3 हो जाता है. लेकिन वो नहीं पूछा इन्होंने. एक्वायर 20% ऑफ द कॉस्ट फॉर इतना. तो ईवी अपॉन ईबिटा दे रखा है विच इज़ 8 इन द करंट ईयर. XYZ जिससे है, जिसका हमें निकालना है बीटा ही है, तो उसकी ईवी कितना होगा? 14 into 8 320. 320 में से हम 320 का 5%, उसमें से हम ये दोनों डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो 32%, 32 का डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो 28 समथिंग आ जाएगा. 28.8. 10% होगा उसका 28.8 का हाफ. उसके बाद UK लिमिटेड इज प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ PT लिमिटेड. फ्री कैश फ्लो ये है. तो हमें डिटरमाइन द वैल्यू पर शेयर निकालनी है. तो वैल्यू पहले निकाल देगी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देंगे. तो वैल्यू कैसे निकलेगी? जैसे हम फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हैं तो ये जितने भी कैश फ्लोज है इसको डिस्काउंट कर देंगे. टर्मिनल वैल्यू को भी डिस्काउंट कर देंगे 11% से. उसमें फिर डेट माइनस कर देगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देगी. फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगी, उसको डिवाइड कर देगी नंबर ऑफ शेयर से. इलस्ट्रेशन नंबर 6 कहता है You are the senior consultant of the firm in the process of determining the valuation of AK Limited. You have determined the valuation of the company by two approaches: market approach and the income approach.
Based on your discussion with your partner, you have assign equal weight to the both approach. ठीक है, तो मार्केट अप्रोच निकालेगी, इनकम अप्रोच से निकालेगी, डिवाइड बाई 2 कर देगी, जो भी वैल्यू आएगी। वैल्यूएशन एज पर ये, वैल्यूएशन एज पर ये, तो इन दोनों का एवरेज ले लेगी, उसमें हम डेट माइनस कर देगी, सरप्लस कैश और कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देगी, फेयर वैल्यू ऑफ सरप्लस एसेट्स एंड लायबिलिटी ये भी ऐड ही कर देगी। ठीक है, उसको डिवाइड कर देगी नंबर ऑफ शेयर से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। DS Limited holds some vacant land for which is used, which is not yet determined. The land is situated in the prominent area of the city where there is a lot of commercial complex are coming up. There is no legal restriction to land into the commercial area. The company is not interested in developing the land to the commercial complex as it is not its business objective. Currently, the land has been let out as parking lot for the commercial complex around. The company has classified the above property as investment property. It has approached you to fair market of the land for the purpose. On what basis the fair market? Fair market जो होता है वो हमने ऊपर देखा था ना, वो कौन सा हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज ऑफ द लैंड, उसके बेसिस पे निकालते हैं। हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज यहाँ पे ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दे। उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 2। DS Limited hold equity shares of a private company. In order to determine the fair value of share, the company uses the discounted cash flow method as there is no similar shares available in the market under which level 3 है। level 2 होता अगर सिमिलर होता, और level 1 होता अगर आइडेंटिकल बोलते शायद उसे, और अगर सिमिलर में एडजस्टमेंट करते हैं तो लेवल 3 बन जाता है, और इसमें अगर डिस्काउंटेड कैश फ्लो से निकालते हैं तो लेवल 3 इनपुट होता है। What would be your answer? If the quoted price of the similar company is available can be used as fair, तो लेवल सिमिलर कंपनी ना, तो लेवल 2 होगा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 8। On 1st January, as assume the decommissioning liability, the which is estimated to be 10 years. Following are the information element. If the S was contractually allowed to transfer S to a market participants, it concluded that the would use all of the following input probability। ठीक है, लेबर कॉस्ट इतना लगेगा, तो इसका लेबर कॉस्ट का प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद एलोकेटिंग 80% ऑफ द लेबर कॉस्ट में हम ओवरहेड्स ऐड कर देंगे। उसके बाद है कंपनसेशन ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट वुड अंडरटेक द एक्टिविटीज फॉर अज्यूमिंग द रिस्क एसोसिएटेड, सच कंपनसेशन इंक्लूड बोथ। नंबर 8 में हम लेबर कॉस्ट ऐसे निकालेंगे, तो सारा कुछ ये एक्सपेंसेस जो है 10 साल के बाद का है। इसमें प्रोबेबिलिटी लेबर कॉस्ट की इतनी है, ओवरहेड्स की उसमें 80% ऐड कर देगी, दोनों को ऐड करेगी, टोटल कॉस्ट आएगा। उसमें प्रॉफिट मार्कअप 20% का की है। तो
उसके बाद वो कह रहे हैं रिस्क दैट द एक्चुअल कैश फ्लो माइट डिफर फ्रॉम दोज एक्सपेक्टेड। तो प्रीमियम, तो जितना अभी भी हमारा प्रॉफिट ऐड करने के बाद जितना वैल्यू आई है उसमें प्रीमियम ऐड कर देगी 5% का। उसके बाद इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, तो ये जो है इन्होंने इन्फ्लेशन ये कह रहे हैं 4% ओवर द 10 4% ओवर द 10% बेस्ड ऑन द एक्टिव मार्केट रेट। तो 4%, अब इन्होंने 4% पर ईयर है तो ये इन्होंने नहीं बताया। तो मेरे हिसाब से पर ईयर है, तो 4% की पावर 10 करके इसको हम मतलब इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू 5% से निकालेंगे। तो नॉट परफॉर्मिंग risk related to will not fulfill the obligation include its और on risk credit risk is, तो रिस्क जो है ये भी ऐड कर देगी मेरे हिसाब से। अच्छा, रिस्क रिस्क मतलब इस रेट पे डिस्काउंट करेगी 5 + 3.5% पे। उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 9। एंटिटी owns 250 ordinary share in company XYZ, a quoted company. Company XYZ has a total share capital of 500 शेयर इतना। Entity XYZ after tax maintaining profit are estimated to be इतना per year। From a published industry is इतना। प्राइस अर्निंग रेशियो, तो अर्निंग्स दे रखी है उससे हम प्राइस निकाल लेंगे। Entity estimate that the discount for the lack of marketability of the company share stick to their on their transfer is 20%। ये 20% क्या चीज़ है? डिस्काउंट, अच्छा ये डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंट फॉर लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी। तो ये डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट लेस कर देगी और उससे पर शेयर की वैल्यू निकाल लेगी, उससे 250 शेयर्स की वैल्यू निकल जाएगी। बेस्ड ऑन द फैक्ट estimate that the fair market value of its own using the net asset technique value, that the fair value of net asset including those recognized in the balance sheet and those are not recognized is 850। determine the fair value of entities A investment in XYZ। the fair value of company XYZ net asset including those recognized in the balance sheet, those not are recognized is इतना। तो ये ऐड कर देगी इतना। नेट एसेट वैल्यू से ये वैल्यू आ रही है नेट एसेट मेथड से। The fair value of these bonds in different market to which A Limited has access are as principal market में इतना है, highest and best use इतना है, net present value of the expected cash flow इतना है, asset based valuation approach में इतना है।
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सर्टेन बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस प्रिंसिपल मार्केट में कोई देते हैं केस ऑफ बॉन्ड्स, तो 500 ही होगा क्योंकि वो लेवल 1 है। उसके बाद हम देखते हैं एमटीपी का क्वेश्चन नंबर 1। एन एसेट इज सोल्ड इनटू टू डिफरेंट प्राइसेस एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन। तो ये वही वाला कौन सा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो उसमें कह रहे प्राइमरी मार्केट अगर मुंबई मार्केट है तो 290 माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 260 आ जाएगी उसमें। उसके बाद वो कह रहे हैं इफ द व्हाट शुड बी नन ऑफ है तो हम फेयर वैल्यू निकाल लेंगे 290 माइनस 40 माइनस 30 और 280 माइनस 20 माइनस 30 जो हायर होगा यही हायर होगा मेरे हिसाब से। तो इसमें 280 माइनस 30 कर देंगे तो 250 की रुपीज़ की फेयर वैल्यू निकलेगी। If the net realization after the expense is more than discard for the fair value. Net realization after expenses more than government allow only 50% of the production out of India. What will be the fair value? Maximum sale domestic. Since the high level of being done in domestic market, the principal market would be domestic market. Therefore, तो वो पूछ रहे कि 15% नेट रियलाइजेशन आफ्टर एक्सपेंसेस इज मोर, मतलब प्रॉफिट उनको एक्सपोर्ट मार्केट से ज़्यादा होता है, लेकिन गवर्नमेंट 15% ही अलाउ करती है। तो और 85% मतलब डोमेस्टिक सेल हो रही है, तो डोमेस्टिक से सेल तो प्राइमरी मार्केट जो होगी वो डोमेस्टिक मार्केट ही होगी।